Hello friends, welcome back. Children, today's topic for our discussion is measurement of national income. Friends, many times we come across this word that is called as national income. Sometimes we also hear it at another level that's called as GDP or gross domestic product or macroeconomic scenario of a country. Children, many times we keep on hearing like India का GDP का growth rate क्या रहेगा, या फिर नेशनल इनकम ग्रो हुआ है फिर रिड्यूस हुआ है. अच्छा, लॉकडाउन के बाद में जीडीपी के ऊपर क्या इफेक्ट्स रहेंगे. देन हाफ द टाइम चिल्ड्रन वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि लाइक सर व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, और सर व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी. सो चिल्ड्रन, दिस टॉपिक विल गिव यू an overview, or we are going in depth to understand children what exactly is the meaning of national income. Acha, what are its features, what are the different concepts of national income. Acha, how national income is measured, and then there's another concept children that's come up nowadays that's called as green GDP. It's also called as green gross domestic product, giving a lot of care to the environment and the nature while calculating a country's GDP. So children, without wasting time, let's begin. First of all, let's understand what exactly is the meaning of national income. Then I'll explain you what are the different methods. Along with that, features की बात करेंगे हम लोग आज. Children, talking about the national income, there is a very simple way of explaining what is national income. I tell you like this. बच्चों, एक देश के अंदर एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए थे. अच्छा, वो सबको जब हम लोग मनी वैल्यू में मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस, तो उसके बाद में जो भी अमाउंट हम लोग को दिखेगा उस अमाउंट को हम लोग नाम देते हैं नेशनल इनकम. सो हाउ डू यू डिफाइन इट चिल्ड्रन टेक्निकली. So national income is children nothing but the total money value of all the final goods and services which are produced in an economy during a given year. तो वापिस से वही, in a given year in an economy how many goods were produced and how many services were rendered. अच्छा, and we are going to convert that into the market value children. Market value is like multiplied by the market price. So that's the normal meaning of national income. Acha, then we come to some of the definitions children. We can speak about that. The first definition is given here by A.C. Pigou, that is Arthur Cecil Pigou. Now how does he define children? He says that national income is that part of the objective income of the community. It's the income of the community. Objective income children would be the income that is generated through goods and services, okay, not the transfer incomes that we have. Acha, but children, it is that part of the objective income of the community which includes, of course, income which is derived from abroad, which can be measured in terms of money. So children, हमारे देश के कम्युनिटी का ऑब्जेक्टिव इनकम, उसमें हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं कि फॉरेन कंट्री से हमको मिला हुआ पैसा जब हम लोग उसमें ऐड करेंगे तो जो अमाउंट आता है हमारे सामने वो रहेगा नेशनल इनकम. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन, ही हैज ऑलरेडी नोटेड हियर दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच एक्चुअली आर सोल्ड फॉर मनी और मनीज वर्थ. चिल्ड्रन, इट मीन्स any particular commodity or a service which is not sold for money, would actually not have any place in national income. क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही बोला हुआ है क्या कि it is the value of goods and services. Now when do you get the value of goods and services children? When those goods and services are exchanged for money. अच्छा, why do they say this? Some things children, they do not command a price, जैसे कि taking care of your parents, a mother cooking for the children, या फिर a mother taking care of a child when he is sick. आपको पता है ये सब सर्विसेज के लिए कोई पैसा नहीं आता, तो इसका मतलब ये भी होता है बच्चों कि इसको नेशनल इनकम में कोई जगह नहीं होती है. क्लियर? So once again children, national income is that part of the objective income of the community which almost includes the income which is derived from abroad, but which should be measured in terms of money, and it only includes those goods and services which are actually sold for money. Then there's one more definition children here given by Simon Kuznets. What he defines is this:
It is a net output of commodities and services flowing during the year from the country's productive system to the hands of ultimate consumers. तो एक इकोनॉमी में एक साल के अंदर कितने कमोडिटीज और कितने सर्विसेज ओके प्रोडक्टिव सिस्टम से अल्टीमेट कंज्यूमर्स के पास फ्लो हुए. वापिस आई एम रिपीटिंग. नेट आउटपुट किसका? कमोडिटीज और सर्विसेज. टाइम क्या रहेगा? एक ईयर. प्लेस क्या होता है? कंट्री. अच्छा, कहां से कहां पे फ्लो करेगा? प्रोडक्टिव सिस्टम से अल्टीमेट कंज्यूमर्स के पास, मतलब बिजनेसेस से हाउस होल्ड्स की तरफ जो फ्लो होता है उसको नेशनल इनकम बोलते हैं. ओके, देन चिल्ड्रन वी कम अक्रॉस व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम. सो एज फार एज मेजरमेंट इज कंसर्न, यू नीड टू बी क्वाइट क्लियर चिल्ड्रन कि एक ही चीज को मेजर करने के अलग अलग तरीके होते हैं. अभी हमने बोला कि लाइक व्हाट इज नेशनल इनकम, तो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, और द टोटल इनकम रिसीव्ड and the total expenditure incurred in the economy. ठीक है, इसका मतलब एक बात क्लियर है बच्चों लोग कि हमारे देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए थे, हमारे देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए थे, वो सबका जो वैल्यू होता है इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो हम लोग पेमेंट्स देते हैं ना बच्चों लोग, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. अच्छा, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये क्या है बच्चों लोग? इनकम होता है. एंड टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये दोनों भी जनरली बच्चों लोग हमेशा सेम ही रहेंगे. सी चिल्ड्रन, मैंने कितना कमाया और मेरे पास जो प्रॉपर्टी है बच्चों लोग, उसका वैल्यू हमेशा एक ही होता है. जब हम लोग बोलते हैं कि लेखा मुकेश अंबानी के पास, अगर मैं बोलता हूँ 55 बिलियन यूएस डॉलर्स का वेल्थ है, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों लोग? उसके पास ये सब रोकड़ा थोड़े ना होता है, नहीं. He'll be having different investments, प्रॉपर्टीज होते हैं बच्चों लोग, उसके व्हीकल्स रहेंगे, उसका हाउस प्रॉपर्टी रहेगा. अच्छा, ये सबको मिला के वो अमाउंट बनता है. अच्छा, और एक बात होती है बच्चों लोग, अगर आपको किसी का इनकम जानना है और आपको उसका इनकम पता नहीं है, तो आप ये भी तो कर सकते हो, आप उसका एक्सपेंडिचर देख लो. अगर मैंने बच्चों 1 लाख खर्च किए, तो इसका मतलब ये भी तो होता है कि मैंने 1 लाख कमाए रहेंगे. अभी आप बोले सर किसी और का लिया रहेगा, तो हाँ, तो बोरिंग्स में दिखा सकते हैं हम लोग. सो योर इनकम विल बी इक्वल टू एक्सपेंडिचर एंड ऑल दीज आर गोइंग टू मैच विथ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी हैव विथ यू. आपके पास जो भी प्रॉपर्टीज है, आपका घर है, आपका जो व्हीकल्स रहेगा, गोल्ड है, इन्वेस्टमेंट्स है, सबको मिलाओगे तो आपका इनकम भी तो पता चलता है. तो दैट इज वाई चिल्ड्रन वी हैव टर्म्ड अप हियर दैट वी अराइव एट व्हाट इज नोन एज अ ट्रिपल आइडेंटिटी. किसकी तरफ आए हम लोग? ट्रिपल आइडेंटिटी. व्हाट इज दैट? कि हमारे देश का नेशनल इनकम विल बी इक्वल टू द नेशनल प्रोडक्ट, मतलब हमारे देश का टोटल प्रोडक्शन, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द नेशनल एक्सपेंडिचर. बच्चों लोग, एक आध कंपनी ने 10 लाख कार प्रोड्यूस किए, तो 10 लाख कार ये क्या होता है बच्चों लोग? दिस इज नेशनल प्रोडक्ट. सपोज दे आर कंपनीज प्रोडक्ट. अच्छा, सपोज फॉर एग्जांपल कि लाइक इसी के वैल्यू को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस से, तो नेशनल इनकम मिलता है. और बच्चों लोग जब जाके परचेस करेंगे कार्स, तो कार के प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेशनल एक्सपेंडिचर भी मिला, मतलब नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट एंड दैट इज इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर. ठीक है. अच्छा, तो कौन कौन सी 3 चीजें आती है देखो ट्रिपल आइडेंटिटी में? नंबर 1, इट इज द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर. मतलब हमारे देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए थे, वो सबका टोटल मनी वैल्यू. ये कौन सा मेथड हुआ बच्चों लोग? इट्स द नेशनल प्रोडक्ट. अच्छा, दूसरी बात, इट इज द सम ऑफ ऑल इनकम्स अक्रूइंग टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन अ ईयर. हमारे देश में बच्चों लोग जो भी लोग पैसा कमाते हैं वो किसके जरिए आता रहेगा? या तो वेजेस, या तो रेंट, या तो इंटरेस्ट, या तो फिर प्रॉफिट. तो आप एक काम करो, चारों को ऐड कर दो, जो मिलेगा टोटल वो होगा हमारा नेशनल इनकम. या फिर देयर इज अ थर्ड मेथड चिल्ड्रन व्हिच सेज दैट इट इज द सम ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर. मतलब लोगों ने कितना पैसा खर्च किया, लोगों ने कितना पैसा सेव करके इन्वेस्ट किया, और हमारे देश में बच्चों गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्च किया गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर. ये बच्चों लोग जो अभी हाईलाइटेड आपको दिख रहा है ब्लू में, ये क्या है? एक देश में किया हुआ टोटल खर्चा. वापिस एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, लोग खर्च करते हैं उसको क्या बोलोगे आप? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर.
अच्छा, हम लोग जो खर्च नहीं करते वो क्या होता है? सेविंग। सेविंग्स बाद में क्या बनते हैं? इन्वेस्टमेंट। ये प्राइवेट लोगों का खर्च हुआ, और ऊपर से गवर्नमेंट भी बच्चे लोग इन्वेस्ट करती है किस पे? गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो सबको ऐड कर दो तो खर्चा। तो पहला मेथड था आउटपुट मेथड, दूसरा होता है इनकम मेथड, और तीसरा होता है बच्चे लोग एक्सपेंडिचर मेथड। So that's what I was referring to children. This is called as the triple identity. क्या बोलते हैं इसको? ट्रिपल आइडेंटिटी। सो ट्रिपल आइडेंटिटी का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको बताया यहाँ पे। यू कैन जस्ट हैव सी दिस हाईलाइटेड वर्ड, national income is equal to national product and is equal to national expenditure. And to tell you the children, the truth is that generally the amounts for all the calculations, तीनों मेथड से आप कैलकुलेट करो, आपका नेशनल इनकम का फिगर सेम आएगा। क्लियर? ओके। Then children, here today we are going to understand what exactly are the features of national income. It's a very simple concept children, you can just have a look. First of all, national income में we have given it like this, we call it as a flow concept. क्या बुलाते हैं हम लोग? Flow concept. Why do we call it as a flow concept? दो concepts होते हैं children, एक होता है static और एक होता है flow। जो पैसा बच्चे लोग मेरे जेब में है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक। मैंने जाके उसको शॉपकीपर को देके कुछ परचेस किया और फिर वो फ्लो करना चालू करेगा, ठीक है। अच्छा, आपके पास कुछ पैसा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट। आपने जाके उससे कुछ परचेस किया और फिर वो क्या होना चालू होता है? फ्लो होना चालू होता है, ठीक है। अच्छा, अभी आप बोलोगे सर व्हाई नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट? इट्स वेरी सिंपल चिल्ड्रन, डेफिनेशन को याद करो। क्या बोलते हैं कि इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे नहीं बोला कि एक दिन कितना प्रोड्यूस किया, नहीं, एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए थे। अभी वो गुड्स एंड सर्विसेज एक जगह पे तो रहेंगे नहीं बच्चे लोग, बाय सेल होते रहता है, दे गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो मनी विल आल्सो कीप ऑन चेंजिंग हैंड्स। एंड चिल्ड्रन सी, मनी डज नॉट सिट एट वन प्लेस, मनी विल फ्लाई ऑन द विंग्स। एक आध बर्ड है, उसकी विंग्स के ऊपर बैठ के वो पूरे इकोनॉमी में इधर उधर घूमता है पैसा, इसलिए नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। चिल्ड्रन, द सेकेंड फीचर विच सेज दैट नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। क्या बोला है? नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। अच्छा, ज्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं बच्चों लोग, वो फाइनली मार्केट में जाने से पहले बहुत सारे प्रोडक्शन प्रोसेस को पास करते हैं। अभी ध्यान रखना है आपको कि नेशनल इनकम काउंट करते वक्त चिल्ड्रन विल ओनली कंसीडर द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स को यहाँ पे कोई जगह नहीं होगी। इंटरमीडिएट गुड्स आर लाइक यू नो चिल्ड्रन, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं क्लॉथ, तो हमने वहां पे यान या फिर धागा यूज किया था, कॉटन यूज किया था, तो हम लोग कॉटन और धागा वो सबका वैल्यू नहीं लेंगे, हम लोग डायरेक्टली क्लॉथ का वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन क्लॉथ को भी अगर हम लोग फाइनल में शर्ट्स या फिर कुछ गारमेंट्स बनाने के लिए यूज करते हैं तो क्लॉथ विल ऑल्सो बिकम लाइक अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अच्छा, अभी बच्चे लोग आप अलग से यान, अलग से कॉटन का वैल्यू इंक्लूड करोगे तो आपको पता है प्रॉब्लम क्या होगा? डबल काउंटिंग होगा बच्चों। आपने कॉटन का वैल्यू लिया, फिर अब यान का वैल्यू ले, तो यान के अंदर कॉटन इंक्लूडेड है, फिर आप क्लॉथ का वैल्यू लोगे, उसके अंदर भी दोनों इंक्लूडेड होते हैं, फिर आप शर्ट का वैल्यू लोगे, उसके अंदर तीनों इंक्लूडेड होते हैं। जैसे कि चिल्ड्रन व्हीट, फ्लावर और बाद में बनता है ब्रेड, तो हम लोग सिर्फ किसका वैल्यू कंसिडर करेंगे? ब्रेड का, क्योंकि अगर तुमने व्हीट और फ्लावर को कंसिडर किया तो ब्रेड की वैल्यू में सबका डबल काउंटिंग होता है। और हमारे देश का नेशनल इनकम चिल्ड्रन ओवर एस्टिमेट होगा, इसीलिए चिल्ड्रन वी डू नॉट कंसिडर intermediate products or raw material, will only consider final goods and services. Clear? Yes. Point number 3 children क्या लिखा है देखो, it is a macro economic concept। क्या बोला है? It is a macro economic concept. Why? एक चीज है बच्चों, डेफिनेशन को देख लो फिर से। इनकम ऑफ द इकोनॉमी, क्या बोला है? इनकम ऑफ द इकोनॉमी एंड नॉट अ इंडिविजुअल इनकम। डेफिनेशन में लिखा हुआ है बच्चों लोग दैट नेशनल इनकम इज अ मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ इकोनॉमी। देश में कितना प्रोडक्शन होता है बच्चों लोग, उसको हम लोग नेशनल इनकम बुलाते हैं, ना कि इंडिविजुअल प्रोडक्शन। देन मॉनेटरी मेजर, अगेन डेफिनेशन की तरफ जाओगे आप। अच्छा, व्हाट इज नेशनल इनकम? सो नेशनल इनकम इज अ मॉनेटरी मेजर, क्योंकि वो ऐसे भी हमने डेफिनेशन में बोला था ना, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। मतलब चलो हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ है
मल्टीप्लाई बाय उसका मनी वैल्यू, यानी क्या, उसका कीमत, उसका प्राइस। तो चिल्ड्रन इट्स मॉनेटरी मेजर, वी डू नॉट मेजर द क्वांटिटीज। हम लोग ये नहीं देखते कि चलो हमारे देश में कितने लाख कार्स प्रोड्यूस हुए थे, कितना टन राइस प्रोड्यूस किया गया था, कितना लीटर्स का मिल्क प्रोड्यूस हुआ था, नहीं, हम लोग ये देखेंगे कि वो सबका पैसे में वैल्यू कितना होता है। क्लियर? अच्छा, देन चिल्ड्रन नेशनल इनकम में हम लोग नेट एक्सपोर्ट्स को ऐड करते हैं। मतलब व्हाट आर नेट एक्सपोर्ट चिल्ड्रन? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। हमारे देश का जीडीपी ऑलरेडी 1 लाख करोड़ है सपोज, और उसमें अज्यूम करना एक 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट्स हुआ था और 5,000 करोड़ का इंपोर्ट्स हुआ था, तो नेट एक्सपोर्ट्स कितना होता है? प्रॉफिट 5,000 करोड़ का। तो 1 लाख करोड़ प्लस ये 5,000 करोड़, तो 1,05,000 करोड़ का हमारा नेशनल इनकम होगा। लेकिन बाय एनी चांसेस चिल्ड्रन, अगर इंपोर्ट्स 10,000 करोड़ का है, एक्सपोर्ट्स 5,000 करोड़ का है, तो हमारा 1 लाख करोड़ में से 5 लाख करोड़ माइनस होगा, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव में आ रहा है। Indirectly children, whatever income is generated from abroad through exports will be either added to the national income or it will be subtracted. And lastly children, it's a measure of economic progress. क्या बोला है? National income is a measure of economic progress. बच्चों, एक आध कंट्री ने किस तरीके से परफॉर्म किया, अगर आप सही में जानना चाहते हो तो वी कैन हैव अ लुक एट द नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री। अगर आपको दिखता है कि नेशनल इनकम का ग्रोथ हुआ है, अच्छा, देन वी कैन अंडरस्टैंड कि इकोनॉमी का परफॉर्मेंस अच्छा है, इकोनॉमी ने प्रोग्रेस किया है। ठीक है, ध्यान रखना है, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट की बात अगर हम लोग अलग से रखेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ चिल्ड्रन जनरली टॉक्स अबाउट इंक्रीज इन नेशनल इनकम। जब हमने 11th में पढ़ा था कि लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो वहां पे भी लिखा हुआ था कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज नथिंग बट इट इज अ क्वांटिटेटिव राइज इन द नेशनल इनकम। मतलब देखो, पूरे देश में घुस के हम लोग ये नहीं देख सकते कि कितना डेवलपमेंट हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेशनल इनकम को देखो, अगर नेशनल इनकम बढ़ गया लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो हम लोग बोलेंगे कि कंट्री ने इकोनॉमिक ग्रोथ किया हुआ है। क्लियर? यस चिल्ड्रन, सो दैट वाज द इंट्रोडक्टरी पार्ट टू नेशनल इनकम। फिर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस और फिर उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन आप पढ़ सकते हो एंड यू शुड बी एबल टू रिमेंबर इट। So that's all for today children. Thank you very much. Stay home, stay safe, take care. See you again for our next lecture. Bye.